Assalamu alaikum student, this is question number 3 of exercise 2.1. We have done addition. Now we are going to do multiplication. For multiplication we are going to check the closure property. Okay, one thing I want to mention that you have to write present in the comment section and see, we have to see multiplication, how multiplication has the closure property with respect to these sets. Okay, this is multiplication. Okay, set number 1 is rational numbers. In previous lecture I have detailedly explained you what are rational numbers. So as you know that 2/3 is a rational number, 1/2 is also a rational number. As operation is multiplication, so we use multiply sign over here. After cancellation, the answer is 1/3. 1/3 belongs to, this sign shows belongs to rational number. Okay, so this set has the closure property with respect to multiplication. Moving on towards whole numbers. As you know, whole numbers starts from 0. Whole numbers starts from 0. Now 0 into 1, 0. 0 belongs to whole number. 0 into 0, 0. 0 belongs to whole number. 2 into 3, 6 belongs to whole number. So we can say that whole number has the closure property with respect to multiplication. Part number 3 is natural numbers. If we are talking about natural numbers start from 1, 2 and so on. Now see 1 into 1. This 1 belongs to natural number. We have to see that answer should belong to natural numbers. As we have taken natural numbers, so answer should also belong to the natural numbers. 2 into 2, 4. 4 belongs to the natural numbers. 4 belongs to the natural number. 2 and 2 both are natural number. We can say that we can take another number like 3 into 8. 3 8s are 3 into 8, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 14, 3 8s are 24. 24 belongs to the natural number. Means natural number has the closure property with respect to multiplication. Operator is multiplier. Okay, we have the operation multiplication. Now 4 part. Moving on towards 4 part. Prime numbers. As you know, prime numbers start from 2, 3, 5, 7. Fourth part is prime number. As you know that prime number starts from 2. 1 is not included in that. The reason behind is that 1 is a factor of each and every number. 2 ones are, 3 ones are. That's why 1 does not belong to the prime number. So starting from 2. 2 is a prime number. 3, 4 नहीं है, 4 2 के टेबल में आता है. 5, 7 and so on. We have taken 2 beginning prime numbers. 2 into 3, 6. 6 does not belong to prime number. 6 का ताल्लुक प्राइम नंबर से नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी 2 के टेबल में भी आता है, अपेयर होता है, और 3 के टेबल में भी अपेयर होता है. वैसे तो अगर एक बात पे प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो हम आगे चेक नहीं करते, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम दोबारा एक और नंबर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर एक बार फेल हो गई तो आगे चेक करने का फ़ायदा नहीं है. ठीक. सो 3 into 5, 3 and 5 both are prime numbers. 3 into 5, 15. 15 does not belongs to prime number. Means that prime number does not possess closure properties, not close under multiplication. And the fifth part is integers. Integers include all positive and negative integers. Integers include all. If
I put the sign over there positive, so we call positive integer. If I put the sign negative here, so we call negative. But there is no sign on z, so we call it positive and negative both. So negative, this is demarcation. 0 is a demarcation, a wall between positive and negative number. Okay, so 1 2 3 ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, दोनों एंड हमने इसको कंटिन्यू रखा है, ये शो किया है कि ये कंटिन्यू है. ओके जी. 1 इंटू 2, 2 बिलोंग करता है इंटीजर से. वी हैव टेकन टू नेगेटिव नंबर टू शो दैट दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट फॉर बोथ. -2 इंटू -1 +3 बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अब एक हमने ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. -2 + 6. वी आर नॉट एडिंग द नंबर्स हेयर, वी आर स्टिल मल्टीप्लाइंग इट. हमने देखिए इस चीज़ को ब्रैकेट में लिखा है ताकि ये बात जाहिर हो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वैसे तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर नेगेटिव लिखते तो हम लिखते में, लेकिन मैंने यहाँ पे शो करने के लिए कि ये माइनस है और ये नेगेटिव है, इसलिए मैंने प्लस लिखा था. ओके जी. -2 मल्टीप्लाई बाय +6 प्लस माइनस 6 into 2 -12 also belong to integer. So we conclude that integers are also a set. Integers is also a set which have the closure property with respect to multiplication. Now moving on towards part 6, even integers. Even numbers are those starting from 2 4 6 8 and so on. 2 into 4 8. ठीक है. 4 into 6 24. This 8 belongs to even integers. Even integers लिख देंगे आप. This 24 belongs to even integers. So this set has the closure property with respect to multiplication. Now moving on towards odd integers. 1 into 3 3. 3 into 9 27. 1 into 3 3. Odd integers are 1 3 5 7 9 and so on. See that 1 into 3 3. 3 into 9 27. This 3 belongs to this set. This 27 also belongs to this set. As 27 is an odd number, ठीक है, 27 odd number and 3 is also an odd number. So we conclude that with respect to multiplication, all sets possess closure property except 4. Which is the 4? 4 is the set of prime numbers. Okay, we have done addition and multiplication, two basic operations. As if a person know the addition, the person should also know how to do subtraction. If a person know multiplication, the person should also know how to do division. They are interlinked. Okay, so subtraction and division is yours, it's up to you, it's your homework, you have to do it. Now moving on towards question number 4 5 6 in book. We have to do this question in book and we are going to see in book and explain by book. Okay, this is at page number 20 of 9 commerce book. Okay, question number 4 5 6 we are going to do it in book. Okay, check yourself and find that which property of R do the sets possess. This is homework. Okay, this question should be done in copy and you have to do it. Now question number 5, name the properties used in each of the following equations. Okay, properties, we are going to discuss properties. We here, if the position of number in position of numbers are changed in addition, the property called commutative property WRT with respect to किसके रिस्पेक्ट से, क्या ऑपरेशन है ये, एडिशन. बेटा अगर मैं आपको इसका
इसकी बात समझाऊँ, अगर a प्लस बी है और इक्वल टू के बाद b प्लस है, ये देखिए 3 प्लस 7 है और इक्वल टू के बाद 7 प्लस 3 है। ठीक, 3 प्लस 7, 7 प्लस 3, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। और जब एडिशन कर रहे हैं तो हम 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, आंसर हमेशा सेम आता है। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का हमसे नाम पूछा गया था। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का भी नाम यही है। अगर आप प्लेस चेंज कर दें, 2 3 = 6, 3 2 भी 6 होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते कम्यूटेटिव ही हैं। लेकिन यहाँ पर एडिशन की जगह क्या लिखेंगे आप? मल्टीप्लिकेशन। सी, नाउ 1/2, 2/3, 1/2, 2/3 प्लस 2/3, 1/2। इसमें भी क्या किया है हमने? सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज की है, तो ये भी कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड पार्ट। सी, 2 + 4 + 6। रुक जाइए, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर आ गए। अब तक हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो 2 नंबर्स की देखी थी, जिसकी हम पोजीशन चेंज कर दें तो हम उससे कम्यूटेटिव कह रहे थे। अब हमारे पास 3 नंबर हैं। इस बात को देखिए, मैंने यहाँ पर 2 + 4 + 6 लिखा है, यहाँ पर भी 2 + 4 + 6 लिखा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये, आप ब्रैकेट देखिए। जब मैं आपको सेट्स पढ़ा रही थी तो आई हैव टोल्ड यू ब्रैकेट शोज़ दैट यू हैव टू सॉल्व दिस वन फर्स्ट। ब्रैकेट ये कहता है कि आपने पहले मुझे सॉल्व करना है। 2 + 4 6, 6 + 6 12। यहाँ पे हम 2 + 4 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 4 + 6 10, 10 + 2 भी 12 होता है। स्टिल आई एम सेइंग दैट आंसर इक्वल ही आएगा, आंसर अलग आ ही नहीं सकता। बट रीज़न ये है कि आपने ये करना है कि ये जो 3 नंबर्स हैं, इसकी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिए मैं प्लस शो कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा है इसलिए, लेकिन इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर आइए, 2 + 5, 3 + 7, 2/5, 2/5, 3/7 + 1/4। ठीक, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है 2/5, 3/7, 1/4। देखिए लाइन से ही लिखा हुआ है, बट ब्रैकेट चेंज है, यानी कि पहले इसको सॉल्व कीजिएगा फिर बाद में से ऐड कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा बाद में इसको ऐड कीजिएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, अब यहाँ पर आइए, 5 + 0 = 0 + 5 = 5। बेटा इधर देखिए, 5 + 0, 0 + 5 = 5। मुझे भी पता है आंसर 5 आएगा, बट आप इस 0 को देखिए। 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें इसको ऐड कराने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐसी चीज़ जिसे ऐड कराने से मेरे आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और वो है 0। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5 + 0, 0 + 5, आंसर क्या आया है? 5 ही आया है। ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इधर देखिए, -2 + 0, 0 + -2 = -2। ठीक, इसमें हमारे पास देखिए ये भी वही है, एडिटिव आइडेंटिटी। -2 में मैंने 0 को ऐड कराया, तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, -2 ही रहा। ये सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आइए, -1/3 + 1/3। अब आप देखिए, ऐसी चीज़ जो हमें आंसर में आइडेंटिटी दे आंसर में आइडेंटिटी दे। एक तो दो बातों को मिक्स मत कीजिएगा। एक चीज़ है
कि आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सॉरी एक चीज़ है, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको ऐड कराने से मेरे पास नंबर सेम आ रहा है। इस चीज़ को, इस ज़ीरो को कहते हैं आइडेंटिटी। अब ऐसा नंबर जिसकी वजह से हमें आइडेंटिटी मिले, वो नंबर मेरे पास कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। यानी अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, तो यहाँ पर मेरे पास 1/3 और -1/3 एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। -1 + 1 0 होता है, यानी -1 का एडिटिव इन्वर्स +1 है और +1 का एडिटिव इन्वर्स -1 है, और जो आंसर है वो आइडेंटिटी है। इधर आइए, ये भी सेम है, एडिटिव इन्वर्स ही है ये, सही। ये चीज़ भी सेम ही है, एडिटिव इन्वर्स है। क्यों? क्योंकि ये √2 था, √2 को कैंसिल कौन करता है? -√2, प्लस से माइनस वाली वैल्यू कैंसिल, आंसर में मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर 4 × 5 5 × 4, ये हमारे पास, याद कीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम जगह चेंज कर देते थे 2 नंबर्स की। अब क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सही। ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन देखिए जगह बदल दी हमने, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? 3 × 1, सॉरी ये क्या है? -2/7। अब आप कहेंगे ये तो प्लस माइनस हो रहा है, ये माइनस इसकी साइन है, ऑपरेटर नहीं है ये माइनस। -2/7, ये -2/7 की साइन है। ठीक, ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। -2/7 × 3/7 × 6, ये 3 नंबर हैं, इनका ऑर्डर देखिए सेम ही है ये, लेकिन ब्रैकेट बना दिया। पहले मैंने इससे सॉल्व करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है। हमारे पास इस चीज़ को हम क्या कहते थे? देखिए इस चीज़ को हम क्या कहते थे कि ऑर्डर सेम हो, बस ब्रैकेट शो करेगा हमें पहले किसे सॉल्व करना है। ये चीज़ हमारे पास एसोसिएटिव है। किस रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 3 × 1 1 × 3। अब आ जाइए, इस 1 ने आंसर पे कोई असर नहीं डाला, आंसर सेम एज इट इज़ अपेयर हुआ। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है, क्योंकि वो आंसर पे कोई असर नहीं डाल रही ना। 0 को आप ऐड कीजिए, आंसर आपका नहीं बदल रहा। इसी तरह मल्टीप्लाई में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ही 0 हो जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लाई में जो आइडेंटिटी है 1 है, क्योंकि 1 से मैं किसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो 1 एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम इसमें देखिए √2 से परेशान मत हुई, एक नंबर ही है, मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय -√2, आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा? √2 एज इट इज़ अपेयर हुआ। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, 5 × 1/5। ऐसा नंबर जो आंसर को 1 बना दे, वो नंबर, यानी आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे इन मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नंबर जो आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, उस नंबर का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये देखिए, ऐसा नंबर जो आंसर में मुझे एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, तो उस नंबर का नाम होता है एडिटिव इन्वर्स। ऐसा नंबर जो आंसर में मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, उस नंबर को कहते हैं इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सही, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इधर देखिए अब यहाँ देखिए, माइनस देख के फ़ौरन कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे
ने क्या कर दिया आपका, माइनस से कंफ्यूज मत होइए, माइनस से मत डरिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, √3 से √3 कैंसिल, आंसर में आ गया 1। ऐसा नंबर जिससे मुझे मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दी, उस नंबर का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी ये जो लिखा है वो यहीं लिखिएगा। ये देखिए 3 4, ये थोड़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसमें 2 ऑपरेशन है, ये आइडेंटिटी डिफरेंट है, इसमें 2 ऑपरेशन है। एक ये 4 + 5 से ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 4 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस की साइन एज इट इज़, फिर 3 से 5 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस की साइन एज इट इज़। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑपरेशन है, एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। होप आई हैव explain in detail and you will understand and your concept will be make inshallah, and you are going to do any kind of question by yourself if you have understood that. Allah Hafiz.